Hello everyone, welcome back to another class of body fluids and circulation. So in our previous classes we have discussed about body fluids and today we are going to start discussing about circulation. So what do we mean by circulation? Circulation is the movement of blood through the vessels of the body. Okay, movement of the fluids, the body fluids through the vessels is known as circulation. Okay, and this network of vessels is known as circulatory system. Means in circulatory system there are many vessels and inside these vessels is present blood. Okay, so there are two types of circulatory system. First one is open circulatory system and second one is closed circulatory system. Okay, let's see the differences between these two types of circulatory system. So, open circulatory system means, in this case, the blood flows through large open spaces, okay, or channels, and these flowing of blood through large spaces is known as sinuses. Okay, means a ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से आता है, फिर ये एक फ्री स्पेस में, एक ओपन स्पेस में ये फ्लो हो जाता है. ओके, मीन्स मान लो जैसे कि हम वाटर किसी चीज पे पोर कर रहे हैं, तो ऐसे ही सर्कुलेशन होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में. ओके, एंड दिस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन द फाइलम आर्थ्रोपॉड एंड mollusks. Okay, arthropod means which consists of insects, okay, which is the largest phylum. So arthropod and mollusk has this open circulatory system. Okay, and in closed circulatory system जो blood flow करता है वो एक closed system और chamber के थ्रू ये flow करता है. means blood open space में नहीं जाता है, जितना भी blood पूरी body में distribute हो रहा है, transport हो रहा है, ये inside a vessel ये ब्लड फ्लो हो रहा है. ओके, सो दिस इज नोन एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. और ये जो क्लोज सर्कुलेशन होता है इसके लिए जो चैम्बर्स एंड वेसल्स है इज नोन एज हार्ट एंड ब्लड वेसल. ओके, एंड दिस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन फाइलम एनिलिड, ओके, एंड कॉर्डेट, और वी कैन से द वर्टिब्रेट्स. ओके, सो here in this picture you can see the differences between open and closed circulatory system. This is the open circulatory system. Here you can say blood flows through the vessel and here you can see the blood just spread out in the tissue. Tissue में ये blood कैसे ये spread हो जा रहा है, flow free space में ये flow हो जा रहा है. Okay, so that's why it is known as open circulatory system. But here in closed circulatory system you can see ये जो blood है ये टिश्यू में ये ऐसे openly ये flow नहीं होता है, but ये जितना भी body में blood है वो एक closed circulatory system और closed blood vessel में ही ये flow करता है. Okay, so from this figure we can easily understand that the differences between open circulatory system and closed circulatory system. Okay, so now we are going to discuss about some circulatory pathway or circulatory system of vertebrate. So vertebrate they possesses heart, which is the muscular chamber. Okay, so in vertebrate or chordate there are 5 different classes. Okay, these are fishes, amphibian, reptile, birds and mammals. So in this chapter we are going to discuss about the circulatory system of human. So before going to start the circulatory system of human, so we will just look a little bit of circulatory system mechanism in other chordates also. Okay, so let's start with the circulatory system of fish. First we will discuss the circulatory system of fish. So
फिश में जो हार्ट होता है, हार्ट इज 2 चैम्बर। ओके, फिश का हार्ट में 2 चैम्बर होता है। हियर इन दिस फिगर यू कैन सी, सपोज दिस इज द फिश हार्ट। ये एक रफ रिप्रेजेंटेशन है just for understanding the circulatory system. Okay, suppose this is the fish heart. यहाँ पे 2 चैम्बर है. Okay, so one is atrium and another one is ventricle. Okay, जो हार्ट में जो चैम्बर होता है उनका नाम एट्रियम एंड वेंट्रिकल होता है, बट ये डिफरेंट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट में ये डिफर करते हैं कि कितना एट्रियम है और कितना वेंट्रिकल है। तो फिश में 2 चैम्बर है, फिश का हार्ट में 2 चैम्बर है, तो 2 चैम्बर में से एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है। ओके, एंड ऑल्सो वी नो दैट द रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज साइट इन फिश इज गिल। ओके, गिल्स में जो गैस है वो एक्सचेंज होता है। इन आवर प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड द exchange of gases, how gases exchange, okay, in different organism. गैस कैसे एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन कैसे रेस्पिरेशन करता है बॉडी में, जो फूड होता है उसको ब्रेक करता है, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो फिर बॉडी से एक्सेल हो जाता है। ओके, सो ये बॉडी में कैसे ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, तो ये एक्सचेंजिंग साइट ये डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है। तो फिश में जो गैसेस एक्सचेंज साइट है वो है गिल। ओके, सो ये जो गैसेस है, गैसेस ही थ्रू ब्लड वेसल ये बॉडी में सर्कुलेट होता है। सो इन सर्कुलेटरी सिस्टम वी आर गोइंग टू discuss about the circulation of the oxygenated and deoxygenated blood. We know oxygenated means oxygen rich blood and deoxygenated means carbon dioxide rich blood. Okay, so oxygenated blood टिश्यू में जाता है, जाने के बाद रेस्पिरेशन होता है, मीन्स ये ऑक्सीडेशन करेगा और इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से आके ये बॉडी से रिमूव होगा। ओके, दिस इज द हार्ट ऑफ फिश which consists of one atrium and one ventricle. Okay, so this heart, this consists of deoxygenated blood. Deoxygenated means carbon dioxide rich blood. So ये carbon dioxide rich blood, this will move to the gill. Gills में ये carbon dioxide rich blood जाएगा, जहाँ पे जाने के बाद ये gas exchange होगा, because we know in fish the respiratory gas exchange site is gill. Okay, गिल में जाने के बाद ये गैस एक्सचेंज होगा एंड देन एक्सचेंज होने के बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विल रीच द ब्लड वेसल, देन दिस ब्लड वेसल विल बिकम ऑक्सीजनेटेड। ओके, मींस इसमें ऑक्सीजन है। ओके, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो टू द बॉडी टिश्यू। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये टिश्यू में जाएगा जहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। रेस्पिरेशन मींस ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन व्हिच विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट को ब्रेक करेगा ऑक्सीजन, ब्रेक करने के बाद जो बाई प्रोडक्ट फॉर्म होगा दिस विल बी योर कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड देन अगेन विल go to the blood vessel. Now this blood will again become deoxygenated और deoxygenated blood फिर जाएगा heart पे। Okay, so this is the circulatory system of fish. Okay, at first heart में होगा deoxygenated blood, deoxygenated blood gills में जाएगा, जहाँ पे जाने के बाद ये गैस एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजन will travel through the blood, means अभी ये blood हो गया oxygenated, ये oxygenated blood will go to the tissue, टिश्यू में जाने के बाद respiration होगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में आएगा, means now this blood will become again deoxygenated blood और ये deoxygenated blood will again move to the heart. Okay, so this is the circulatory system of fish. This is a single सर्कुलेशन। ओके, मींस एक ही बार ये हार्ट के थ्रू जा रहा है। ओके, ये एक सिंगल सर्कुलेशन है।
हार्ट से गिल्स, गिल्स से टिश्यू एंड टिश्यू से फिर ये हार्ट। इसको बोला जाता है सिंगल सर्कुलेशन। ओके, नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। So amphibians and reptiles have three-chambered heart except for crocodile, which is a reptile. Okay, so except crocodile, amphibians and reptiles have three-chambered heart. So there are two atria, okay, and one ventricle. Okay, three chamber है जिसमें से दो atria है और एक ventricle है. Okay, और जो respiratory gas exchange site है in the amphibians and reptiles, they are many, so they can be gills or lungs or skin or all of them. Okay, so here you can see it is a rough sketch of circulatory system in amphibians and reptiles. So this is the heart. Here you can see यहाँ पे तीन चैम्बर है। ये जो ऊपर का दो चैम्बर है ये है एट्रियम और नीचे वाला है वेंट्रिकल। ओके, so this is the लंग्स। ओके, जहाँ पे रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज होता है। सो ये लंग्स भी हो सकता है, गिल्स और स्किन, और यहाँ पे हमने लंग्स यहाँ पे शो किया गया। सो इट कुड बी एनीथिंग, मीन्स द ऑर्गन वेयर द गैस विल एक्सचेंज। ओके, आफ्टर एक्सचेंजिंग ऑफ गैस द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव टू द लेफ्ट एट्रियम। ओके, so this is the left atrium. हम सामने से देख रहे हैं इसलिए ये राइट है, ये लेफ्ट है, बट ओरिजिनली इनसाइड द बॉडी ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट। ओके, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पहले आएगा, देन इट विल मूव टू द वेंट्रिकल। सो हियर देयर इज ओनली वन वेंट्रिकल एंड टू एट्रियम। ओके, सो देन इट विल मूव टू द वेंट्रिकल. From ventricle it will go to the organism's body's tissue. Okay, ये टिश्यू में जाएगा। टिश्यू में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूटिलाइज होगा फॉर रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। देन फ्रॉम टिश्यू जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट विल मूव, मीन्स नाउ इट विल बिकम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट विल मूव टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से फिर से ये वेंट्रिकल में आएगा। वेंट्रिकल में आने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से लंग्स पे और जो भी रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज साइट होगा वहां पे मूव होगा। ओके, फिर से गैस एक्सचेंज होगा, मींस ऑक्सीजन लेफ्ट एट्रियम में आएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, देन टिश्यू में जाएगा जहां पे रेस्पिरेशन होगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम, वेंट्रिकल, देन लंग्स। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हार्ट में दो बार जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है। ओके, इन द प्रीवियस वन इन फिश वी हैव सीन दैट देयर इज ओनली ए सिंगल सर्कुलेशन, बट यहाँ पे एक काइंड ऑफ डबल सर्कुलेशन हो रहा है, बट दिस इज नॉट ए कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इसको हम लोग कंप्लीट डबल सर्कुलेशन भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो वेंट्रिकल है, ओके, वेंट्रिकल एक ही है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी वेंट्रिकल में आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड भी वेंट्रिकल में आ रहा है। तो यहाँ पे जो ब्लड है ये कुछ मिक्स होता है। ओके, ये ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड कुछ हद तक ये मिक्स हो जाता है, तो जिसके लिए प्रॉपर डबल सर्कुलेशन नहीं है, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। ओके, सो एज ए रिजल्ट ये मिक्स हो जाता है, तो जो बॉडी में जाता है ये फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में नहीं जाता है, मीन जो टिश्यू में जाता है ये फुल्ली ऑक्सीजनेटेड नहीं जाता है। दो ये जो ओपनिंग है बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल और राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ये जो दो ओपनिंग है इसका जो टाइमिंग है टू रिलीज द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द वेंट्रिकल ये डिफरेंट है। इसके वजह से ये पूरा ब्लड मिक्स नहीं होता है, बिकॉज ये टाइमिंग डिफरेंट है। सो ये एक जाने के बाद ही दूसरा ओपन होता है। ओके, तो इसके लिए पूरा मिक्स नहीं होता है, बट ये पूरा सेपरेट भी नहीं होता है। सो कुछ हद तक ये मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी टिश्यू में ये फुल्ली ऑक्सीजनेटेड नहीं पहुंच पाता। ओके, दैट्स व्हाई this three-chambered heart which is found in amphibians and reptiles, it is
इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. ओके, तो सिंगल सर्कुलेशन भी नहीं है और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन भी नहीं है. नेक्स्ट वन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स, मैमल्स एंड द क्रोकोडाइल. ओके, क्रोकोडाइल जो कि एक रेप्टाइल है, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है. बाकी जितना भी अदर रेप्टाइल्स है उसमें 3 चैम्बर्ड है. सिर्फ क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड है. और जो बर्ड है और मैमल से कंप्लीट बर्ड का क्लास मींस एप्स का क्लास एंड क्लास ऑफ मैमल्स, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट. ओके, 4 चैम्बर होता है हार्ट में. सो इसमें एट्रिया रहता है और 2 वेंट्रिकल. ओके, देयर आर 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स इन द 4 चैम्बर्ड हार्ट of birds, mammals and crocodiles. And the respiratory gas exchange site in these organisms is lung. So this is again a rough sketch for the 4 chambered heart organism. So ये है lungs जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है. ओके, गैस एक्सचेंज होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल reach to the left atrium. So this is the left side and this is the right side. Okay, so left atrium में ये oxygenated rich blood ये पहुंच जाता है. After the left atrium they will release into the left ventricle. Here you can see ये जो right and left chambers है ये fully divided है. Okay, और fully separated है. ओके, सो ये पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, देन ये लेफ्ट वेंट्रिकल में. आफ्टर दैट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव टू द टिश्यू. टिश्यू में जाने के बाद रेस्पिरेशन होगा, तो जिससे ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर से ब्लड वेसल में मूव होगा. नाउ दिस ब्लड वेसल विल बिकम डीऑक्सीजनेटेड. ओके, सो ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम will reach to the right atrium. From right atrium it will move to the right ventricle और right ventricle से ये deoxygenated blood will again move to the lungs. Okay, lungs में फिर से ये diffusion होके exhale हो जाएगा और फिर से जो inhalation में गैस आएगा वो exchange होगा. exchange होके oxygen will again come to the left atrium and this cycle will continue. Okay, so here all the chambers are fully separated और ये जो blood heart में आ रहा है ये 2 बार आ रहा है, but ये जो process है fully means oxygenated और deoxygenated blood fully ये separate है. Okay, means कहीं पे ये mix नहीं होता है as we have seen in the 3 chambered heart. So that's why this is a complete double circulation. Okay, इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं. फिश में क्या था, सिंगल सर्कुलेशन. देन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में हमने देखा ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, बट दिस इज कंप्लीट डबल सर्कुलेशन एज यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स नहीं हो रहा है. दोनों का अलग अलग चैम्बर है और कंप्लीट डिफरेंट उसका जो वेसल्स है इसके साथ वो मूव करता है. तो दिस इज ए डबल सर्कुलेशन. ओके, सो this will first move from lungs to left atrium, then left atrium to left ventricle, then left ventricle to tissue, and in tissue respiration will occur where the carbon dioxide will release. Carbon dioxide will move to the right atrium. From right atrium it will move to the right ventricle, and from right ventricle it will again move to the lungs. Okay, so this is a double circulation. Okay, so today we have discussed about the circulatory system in a cyst. So that's all for today. In our next class we will discuss in details the circulatory system in human being. Okay, so thank you.